Good morning, student. I am Rajendra Simuri, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mumbai. This is the class 7 online session of mathematics, and we already discussed into the previous live session, that is percentage. I'm just going just take it the review of it. This is the concept time 13 SB 17 that already we discussed into the during the live sessions that you know. So this is the percentage, how to compare the quantities with using the percentage, what is the meaning of percentage that I discussed into the live session. You can also showing these concepts from your supplementary book. Percent का मतलब होता है per means every and cent means 100. So that is percentage we have to using, and we will also now we are discussing about the percentage today. So example 26 is suggesting that 80% of students in a class are girls. So 1 by 100 that is 1%, 2 by 100 that is 2%, 20 by 100 that is 20%. So what is the percentage of 20 by 50? Obviously 20 by 50 is considered the 14 by 100, so 40% are there. Similar we are going for the fraction of a percentage. हमने ये चीज़ मेंशन की थी, शायद आपको याद हो तो अब हम फिर से ये एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने पहले ही बोला कि 1/100 को हम 1% बोलते, 2/100 को 2% बोलते और 20/100 को हम 20% बोलते। So what is the percentage of 20/50? So 20/50 को हम कंसीडर करें तो फाइंड इट्स परसेंटेज वी कैन कन्वर्ट 20/50। सो 20/50 को हम समझ में आए तो 50 को पहले हम रेशियोज में 100 का कन्वर्जन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था लाइव सेशन में कि 20 को 2 से और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 और 100 आता है। तो 40 100 को हम परसेंटेज में दिखा सकते हैं सीधा ही, क्योंकि 40% है, क्योंकि नीचे 100 है। किसी भी नंबर्स के नीचे 100 है तो हम डायरेक्टली वो नंबर को ही सीधा परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हुई उस टाइम की बात, जो मैंने आपको बताया था। वैसे फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज को हम कंसिडर करना है। So we cannot any fraction into percentage by substituting 1/100 with percent. So we can convert it. So if the denominator is not 100, we multiply the numerator and denominator by 100 and simplify the fraction to get 100 in the denominator. मतलब जब हमारे पास ऐसा कोई डिनोमिनेटर 100 के फॉर्म में नहीं होता है तब हम उसको इजीली 100 में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल अप्लाई एज अ फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेज। सो वी कैन से दैट 12/14 है तो 12/14 में डिनोमिनेटर 40। सो 40 को हम पहले 100 में कन्वर्ट कर देंगे। सो 40 को 100 में कन्वर्ट करना है तो मतलब हम 12 और 40 दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12/100 इंटू 40 इंटू 1/100 करेंगे तो ऑब्वियसली वी गॉट द 30% ऑफ इट। सो दैट इज द मेन कैलकुलेशन ऑफ इट। सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, we can say that by 100, simplify the fraction leaving 100 in the denominator and replace 1/100 with the परसेंटेज सिंबल। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको लाइव सेशन में भी बताया था। सो लेट अस मूव ऑन दैट कंसेप्ट। अभी हमारा ये जो चीज़ आपको रेफरेंस देखना है, देन यू कैन ऑल्सो यूजिंग द SB17 because of this is the third chapters is going on, that is comparing quantity in unit number 1. Okay, so let us move on to the next points is there. Now one question from the NCERT book, that is NCERT exercise 8.2. Just we discuss first this question also you can put into your fair book. In a city 30% are females and 40% are males and remaining are the children. So what percent are the children? यहाँ पे हमें फीमेल और मेल दोनों का परसेंटेज दिया गया है। We will find out about the percentage of the children.
So total population of the city is 100%. Percentage of the children, that is 100 minus 30 minus 40. So we will find out the 30%. अब देख सकते हो कि 100 में से 30 और 40% को हम निकाल देंगे तो जो रिमेन होगा वो चिल्ड्रन के परसेंटेज आ जाएंगे. सो दैट इज इजी थिंग that questions is suggesting. So you can also write down this question in your book, and also whatever the questions you solved today during the video session, all the questions you have to send as 2 days homework. So without failing, you can give me this all these things. Is it clear? So next one is considered. The next points is that what percentage of your day do you spend sleeping? अब आप बात ऐसी कर रहे हैं कि आप स्लीपिंग में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उसके परसेंटेज यदि हमें निकालना है तो परसेंटेज ऑफ द डे स्पेंड स्लीपिंग ईयर, उसका इक्वेशन है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप इन ए डे और टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे. सो इट मल्टीप्लाइड विथ 100 by 100 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. सो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप इन ए डे डिवाइड विथ 24 into 100 by 100. So we can say that 12-year-old students should get at least 8 hours of sleep every day, then which is around 33% of the day. मतलब कोई भी 12 years का स्टूडेंट है, यदि वो एटलीस्ट 8 hours की स्लीप लेता है, then that is around 33% of the day. पूरे दिन की 33% उसने स्लीपिंग ली है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो ये आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ आप अपने फेयरबुक में रखो. कभी भी इसका भी टाइम आएगा जब हम इक्वेशंस के ऊपर हम लिखेंगे तो ये इक्वेशन उस टाइम आपको याद रहना चाहिए. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now we will discuss here that all these things, fraction, decimal and percentage. अभी हमने सभी चीज को मेंशन कर दिया पहले दो पोर्शन में, फ्रैक्शन, decimal, and now we are also sold out the percentage. So all these things together, fraction, decimal and percentage. Now let us move on it. First thing is that fraction part represent the shaded area in the following forms: fraction, decimal number and percentage. Just we have to get it out. उसको हमें शेड करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की बात हम करें तो एक टोटल जो बॉक्सेस है वो 6 by 6 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 is there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 by 10 यानी 100 बॉक्सेस आपको दिया गया. अब नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको फाइंड करना है, दैट इज द फ्रैक्शन. डेसिमल नंबर आपको वही नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 रहेगा. और यदि वही चीज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 36% होगा. ये तीन चीज शेडेड रीजन को, आपके बॉक्स में जो शेडेड रीजन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं. यदि हम फ्रैक्शन कहेंगे तो there are 36 boxes are the shaded. So that's why 36 divided with total number of square, यहाँ पे 100 है, मैंने पहले बताया है. तो 36 by 100 हुआ, वो फ्रैक्शन पार्ट हो गया. डेसिमल का पार्ट आप देख सकते हो 36 डिवाइड बाय 100, सो 0.36 हुआ. परसेंटेज में आप उसको लिखेंगे तो 36 by 100, दैट्स वाई 36% इज दैट. तो इसी तरीके से तीन चीज को हमने दो चीज सीख ली, अब तीसरी चीज भी हम सीख, परसेंटेज को भी हमने सीख लिया. तो तीनों चीज को एक ही कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द वन व्यू ऑफ इट. दैट थिंग्स आल्सो बी मेंशन इन योर फेयर बुक. Now next one is that so far we can see in percentage which are less than or equal to 100. हमने ऐसा देखा कि यहाँ पे परसेंटेज कैन बी मोर देन 100. 100 से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं. अभी तक हमने जो भी परसेंटेज देखे वो 100 से कम है. ऐसा हो सकता है कि कभी परसेंटेज 100 के ऊपर भी हो. किसी की रिजल्ट शीट में आप देख सकते हो कि उसको 110% आए, ऐसा नहीं कह सकते. Whenever we got either
that numbers of otherwise it less than or 100. So that is the unique solution for that. So let us know that either can percentage be more than 100. Let us explore using some examples. So example को हम समझते हैं example से. Which of the following is possible? 150% of the student in the class are boys. Whole class and boys in the class. ऐसा आपको एक पिक्चर दिया गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है. Second is square's perimeter is 400% of its sides. So 100, 100, 100, 100. So that is 400. So whole class and boys in the class both are be there. तो आप बता सकते हो कि 100% से ज़्यादा हुआ. Obviously हम बात कर रहे हैं कि this means for every 100 students in a class there are 150 boys, which is not possible. आप ऐसा कह रहे कि 150% को आपको रिप्रेजेंट करना है. इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 100 स्टूडेंट्स के सामने आपके पास 150 बॉयज है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. आपके पास 100 स्टूडेंट है टोटल, उसके सामने आपको 150 बॉयज कैसे होंगे? सो इट्स नॉट पॉसिबल. Similar way we are using into the right one example. A square's perimeter is 400 of its sides. This means that if the sides of a square measures 100 units, its perimeter will be 400 units, क्योंकि 100 का 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, which is possible. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 400% is correct, क्योंकि 100 100 100 100 यानी चारों का 100 को 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, so that will consider as a 400. So 400% is correct, but 150% left side of the example is not possible. So therefore percentage can be more than 100%. यदि हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी परसेंटेज 100 के ऊपर नहीं हो, परसेंटेज भी 100 के ऊपर हो सकता है. ये आपको राइट साइड में जो दिख रहा है वो आपका एग्जाम्पल्स है. वो एग्जाम्पल्स के ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑल्सो भी कैन बी मोर देन 100%. इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप माइंड में याद रखना. Next one is consider that 2 points that is very important over here. Can these points is suggesting here that the percentage of the people less than 18 years of age in the world and the size of a monkey compared to the size of a mouse. So can the following percentage be more than 100%? The percentage of the people is less than 18 years of the age in the world. वो 100% से ज़्यादा होंगे कि नहीं? दूसरी चीज ऐसी कंडीशन दी गई है कि द साइज ऑफ मंकी कंपेयर टू द साइज ऑफ द माउस. तो ये चीज जो है वो 100% से ज्यादा होगी क्या नहीं? जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट द आंसर. पहले द परसेंटेज ऑफ द पीपल लेस देन 18 years of the age in the world, that is no, because that is no more than 100%. Why? The total number of people less than 18 years of age cannot be more than the total population of the world. Total population of the world से वो कभी ज़्यादा होंगे ही नहीं. हो सकता है कि that should be more than, but here asking that less than 18 years of the age in the world, so that ratio always be saying no. तो ये हम कह सकते हैं कि वो 100% से ज़्यादा नहीं हो. Second thing is that the size of a monkey compared to the size of a mouse. Yes, the size of a monkey can be more than the size of a mouse. आपको पता है कि मंकी की साइज माउस से ज़्यादा ही होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि more than 100% it can. So that is the answer is correct for more than 100%. Now we are going for expressing a fraction as a percentage. अब हम बात कर रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो हमें बताना है कि 4/5 है, उसको परसेंटेज में लिखना है. सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल्स. वॉट एवर द एग्जाम्पल्स आई सोल्ड इन ड्यूरिंग दिस वीडियो लेक्चर, यू कैन ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट डाउन इन योर फेयर बुक. फेयर बुक में आपको हर एक एग्जाम्पल लिखना ही है. एंड in today's homework you will send all these things what I have explained in today's lecture. Is it clear? So express 4/5 as a percentage. उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम परसेंटेज में, इसी फ्रैक्शन को.
सो फर्स्ट थिंग इज दैट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100, यानी 4 और 5, या हमारा न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 5 है, दोनों को 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्टेप। दूसरी चीज हम बात करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन किया, 4 का 4 इंटू 100 होता है 400, और 5 इंटू 100 जो होता है वो हम 5 रखेंगे और 100 को अलग कर देंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे, 4 इंटू 100 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 बन जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। और दूसरी जो 5 एंड 100 है वो अलग कर देना है, 5 इंटू 1/100 ऐसे। सो सेपरेटिंग आउट 1/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400/5 इंटू 1/100। सो 100 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा 80। सो 1/100 का मतलब ही होता है परसेंट, तो अब उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द 80%। तो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड आउट एनी फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, इस टाइप की क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। सो एक्सप्रेस 4/5 एज अ परसेंटेज, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट स्टेप्स इज गिवन हियर। नेक्स्ट वन थिंग इज दैट हाउ वुड यू एक्सप्रेस 2:2:1 इन परसेंटेज। ये रेशियो गिवन है, यहाँ पे आपको रेशियो है, सो एक्सप्रेसिंग रेशियो एज अ परसेंटेज, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम ऐसा करेंगे कि 2:1 का रेशियो दिया गया है तो तीनों का टोटल कर देंगे, 2 + 2 + 1 यानी 5 हो जाएगा। देन आफ्टर दोनों को हम कंसीडर करेंगे तो पहला आपका डिजिट 2 to 1 है, उसमें से 2 डिवाइड विथ 5, 1 डिवाइड विथ 5, मतलब हमने तीनों रेशियो का टोटल कर दिया। सो टोटल कर दिया वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, सो 2/5 हुआ, वो 1/5 हुआ। ऐसे ही 2/5, 2/5 एंड 1/5, दैट इज द इंटरनल रेशियोज। सो रेशियोज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, 2/5, 2/5 एंड 1/5, समझ में आ गया। अब उसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो चीज आ रही है वो क्या है, दैट इज कंसिडर 2/5। 2/5 का परसेंटेज जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में निकाला, सेम थिंग वी आर यूजिंग 2/5, यानी दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिनोमिनेटर है उसमें 5 और 100 को अलग कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हम इम्प्लीमेंट करें तो 2/5 और 1/5 का परसेंटेज मिला 40% एंड 20%। क्योंकि और 2/5 का हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों 2/5 का जो रेशियो परसेंटेज मिलता है वो इक्वल ही होगा। So how to express a ratio as percentage that I mentioned. So these things I hope that everyone has cleared in your mind. So let us move on to the another point. So we can say that therefore 2:2:1 can be expressed as 40%, 40% and 20%. So आज हमने दो चीज ऑलरेडी सीख ली है, एक्सप्रेसिंग द फ्रैक्शन एज परसेंटेज एंड एक्सप्रेसिंग रेशियो एज अ परसेंटेज। तो रेशियो गिवन है तो कैसे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन है तो उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर वन पॉइंट। आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्रेस 0.034 एज ए परसेंटेज, मतलब डेसिमल नंबर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दिस इज द थर्ड वन कैटेगरी। पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, फिर सेकंड वन हमने किया रेशनल नंबर्स, सॉरी डेसिमल नंबर्स एज ए परसेंटेज, ratios as a percentage and fraction as a percentage. So express 0.034 as a percentage. Here consider express 0.034 as a percentage. हम क्या करेंगे, 0.034 को 100 से जितने भी पॉइंट से डेसिमल को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जब हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं तो फ्रैक्शन
रेशियो को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और डेसिमल नंबर को भी पहले फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी फ्रैक्शन की स्टाइल से ही हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। सो 34 यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 34 के नीचे 1 के साथ 3 जीरो होंगे। यदि 2 होता तो 2 जीरो होता, यदि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होती तो नीचे एक ही जीरो होता। ये सब चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो। सो 34 को 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद दोनों फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे, देन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3.4% आएगा। तो ये भी इजी चीज़ है, हाउ टू एक्सप्रेस ए डेसिमल नंबर एज ए परसेंटेज। तो यहाँ तक कि तीनों तीन प्रोसीजर में 3 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए, और जो भी चीज़ मैंने आगे आज की वीडियोस में बताई वो सभी एग्जाम्पल्स आप अपनी फेयरबुक में लिखेंगे। यही चीज़ आप अपने होमवर्क में आज सेंड करेंगे। सो विदाउट फेलिंग यू हैव टू सेंड दिस होमवर्क। If you're having any kind of the doubt, then you can ask me. I hope that everyone has conclude these things whatever we discussed today. And if you have found any kind of the problem, just ask me without failing. And don't forget to share this particular homework, because homework is essential for attending all these things. So thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.